Sharks, we are from one of the happiest places in India, Sibai. I'm Zoe Moi. I'm Felipe. We're coming all the way from Aizawl, Mizoram, one of the best-kept secrets of India. Imagine cool, misty mountains, quiet valleys, no honking, and farms that feel untouched by time. यहाँ हमारे farmers grow the most exquisite fruits. The Khasi mandarin, bright pomelo, GI tag ginger, all with organic farming practices. But when you look at India's beverage shelves, you don't find this taste. You find a lot of sugary synthetic drinks. इसलिए हमने बनाया local all-natural soda. A scalable farm-to-bottle craft beverage using indigenous ingredients, real fruits, real flavor, real juice. You can taste the purity of our hills in every sip. Every bottle supports the farmers and communities that make Mizoram such a special place. We're not just building a brand, we're creating a movement to bring the flavor of Mizoram and the Northeast across India and the world. Beautiful Mizoram, just one of the most gorgeous places in India and undiscovered, as you said. Please tell us about your journey. How did you get started? I'm a Mizo. I grew up in Mizoram, and I went to the US for my undergrad, and I happened to meet my husband as a freshman. We've been together ever since. Oh, wow. That was back in 2001. What did you go to the US to study? Information systems in Rochester Institute of Technology. Then I went to grad school at Carnegie Mellon. Then I worked at Accenture. I was in consulting. Okay. Felipe? Originally, I'm from North Carolina, It's a long way. but it took a long time to get to where we are standing now. I worked doing packaging design in New York City. My last gig was at Unilever doing packaging and product development. Why come back to Mizoram? My husband here is a very good brewer. He was an award-winning brewer in New York, and we wanted to do our own thing. So we took our savings and we built a microbrewery in Mizoram. Actually, they're very good. I just had a couple. That's our hero product. Orange is our bestseller. Really light, very easy to drink. Thank Okay. you. Not like that Thank you. heavy, sugary soda. Even the pomelo, it has a slight bitterness, tastes just like a pomelo fruit does. Yes. The design work is really nice. Like it's the brand work and the packaging. So it's designed by an artist named Neeti. She's an award-winning artist. You didn't trust Philippe to design it? Since he's a packaging He's- designer? He's a closeted drawer. He doesn't want to display his art out. Your ginger ale is also pretty good. It's got a kick to it. Yes, A little because it's bit, made yeah. with GI tag ginger from Mizoram. Achai, you know what achai means? No, I'm Acha hai. Very good. Thank Okay, you. Thank that's you. We awesome. agree. Nice. So tell us more about the product. We're using all natural ingredients. These are all sourced from farmers in Mizoram. Okay. This year, we're going outside from Meghalaya, maybe Arunachal. Started off processing everything in-house, juicing with wooden presses. I'm in charge of production, the brewing, but really, we're just trying to preserve the essence of these natural products. Wow. These are all hand pressed for the No, flavor. not all of it. So we Okay. started off very manual. We did all the juice processing in-house. Now we're working with places that can juice it nearby these farms that are already established, that already have the infrastructure. Then we do all the brewing and bottling in-house. Can it scale from there? You guys will have to move to some other city, or do you think from Mizoram also it can become a brand? We have a very scalable model. Regionally, we'll still process from Mizoram, still very much true to our core because we're still going to be sourcing it from farmers and still doing that essence from Mizoram. But we'll do contract manufacturing in other areas. So when you compare this product to other juices in the market, do you think this has lesser sugar and less? Because I noticed the calories are also about on an average 35, 36 Yeah. per 100 ml. We are very much conscientious of the sugar content. A lot of the sugar is also derived from the From the fruit fruit, itself. yeah. We're also trying to appeal to greater population, so we have to have some sort of sugar. And in terms of other companies, the sugar content is a lot less. What is the price of each bottle? MRP today is at 120. Okay, I think this might be a good time to talk about what your numbers are today. Officially incorporated in 23, 24.
We started off with 19 lakhs in revenue, 32 lakhs in spend, so gave us a negative EBITDA of minus 13. Last year, we had a revenue of 44 lakhs and spending of 84 lakhs, and that gave us with an EBITDA of minus 40. This year, total revenue is 50, expenses are at 45, giving us a positive EBITDA so far of 5 lakhs. The revenues went from only 44 lakhs to 50 lakhs run rate. So I presume this year will be what, 70, 80 lakhs? We are looking at 120, Lakhs. yeah, 120 1.2 lakhs. crores. Yeah. How did it suddenly go from minus 40 lakhs loss to 5 lakhs profit? Last year, we spent a big part of our expenditure on marketing and also just honing in our distribution. And today, we are really cut back on that, mainly because we ran out, we're just focusing on our revenue. Were you going to say we ran out of money? We burned money. We raised 50 lakhs from friends and family last year. So you're saying once the distribution got established, the sales went up, and now you're not spending that money, which is why you become profitable. Yeah. Can you also give channel split now? Online and through our direct customers, 28%. Horeca, we have 26%. Retail at 14%. Events at 20%. 6% through our corporate partners and 6% with distributors and etc. नमस्ते शार्क्स, मैं हूं मनीष। मैं निमिष। मैं हूं अक्षय। मैं संजय। और हम आए हैं मुंबई से। हमने बनाया है थ्री सिस्टर्स, इंडिया का नेक्स्ट जेन बेवरेज ब्रांड हाउस जो सर्व करता है संस्कारी नॉन अल्कोहलिक बियर्स। संस्कारी यानी बस बिना हैंगओवर के। थ्री सिस्टर्स की शुरुआत तो हुई थी 3 ड्रिंक से, लेकिन आज हमारे कई सारे सिस्टर ब्रांड्स हैं, जैसे कि अरूबा मॉकटेल एंड मिक्सर्स, जर्क एनर्जी ड्रिंक, थ्री सिस्टर्स क्लासिक इंडी सोडास एंड थ्री सिस्टर्स सुपर कोला। और हमारी ताकत है हमारा ऑफलाइन रिटेल नेटवर्क, और हम बेच चुके हैं 50 लाख से भी ज्यादा यूनिट। शार्क्स, यहाँ किसी महापुरुष ने कहा था कि बेवरेज इंडस्ट्री शमशान घाट है। वो है नहीं यहाँ। प्लीज लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर स्टोरी। आप चारों दोस्त तो होंगे जो एक साथ बैठ के कंकॉक्शंस बना रहे थे। मैं बनारस से एक दरौली गांव से हूँ, जो मुंबई में 2006 में आया था पहली बार। रिक्शा से स्टार्ट किया था। कुछ दिनों बाद मैंने सोडा पॉप स्टार्ट किया। ये किधर था आपका ठेला? ये हमारा भटवाड़ी घाटकोपर। घाटकोपर में। हाँ। फिर प्लांट डाला हमने। प्लांट में बहुत सारे लोगों का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता था मैं, तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के समय पे ही ये लोग हमको आए थे कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए। संजय जी, एक सोडा पॉप स्टॉल से आपने प्लांट डाल लिया? 12 सोडा पॉप था सर, 1 से 12 किया हमने। 12 किया। हाँ। और वो 12 सोडा पॉप स्टॉल से जो कमाई की, हाँ। उससे प्लांट डाल लिया। प्लांट डाला। क्या बात है, ये हुई ना बात। कितने सारे सोडा पॉप रेडी वाले आज सुन रहे होंगे और सोचेंगे बॉस अपना भी ये बन सकता है काम। मैं और निमिष बेसिकली सिबलिंग्स है, सो वी कम फ्रॉम अ स्मॉल सिटी जालोर इन राजस्थान। वी बोथ आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बाय प्रोफेशन, एंड मनीष हमारा कजिन है। सो मनीष ने उसका इंजीनियरिंग कंप्लीट किया 2016 में, तो 2017 में मैंने और मनीष ने मिलकर साथ में ये इंडस्ट्री में एंटर किया। स्टार्टेड विथ फ्लेवर्ड वाटर कैटेगरी। उस टाइम वो काफ़ी नीश मार्केट था। हम साथ में नॉन अल्कोहलिक बियर इंपोर्ट करके मुंबई में ट्रेड करने लगे, एंड दैट वाज डूइंग गुड। और उस टाइम हमारा जो वाटर प्लांट था उसमें वो कैपेबिलिटी नहीं था कि हम कार्बोनेटेड बेवरेज फिल कर सकें, एंड दैट्स हाउ वी अप्रोच मिस्टर संजय। ये ऑलरेडी काफ़ी ब्रांड्स का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते थे और मुंबई में उनका काफ़ी नाम था। आफ्टर कोविड 1 से 1.5 साल इन्होंने हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग किया, हम मार्केटिंग करते थे। हमारा रिलेशन अच्छा बना, सिंक अच्छा बैठा, तो साथ में 2021 में हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट किया। वी गॉट एवरीथिंग अंडर वन रूफ, एंड देन वी स्टार्टेड ऑपरेशंस इन 2022। एवरीथिंग अंडर वन रूफ का मतलब है जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था वो भी अब ये कंपनी पेरेंट कंपनी ओन करती है। Right? उस पेरेंट कंपनी में क्या ओनरशिप है आप लोग? संजय भाई currently owns 42% in total. We have 16% each, and we have diluted 10%. There is 2% strategic investment, and बाकी का 8% family friends में। संजय जी, जब ये हुआ मर्जर, उस टाइम पे आपकी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी थी उसका क्या रेवेन्यू क्या प्रॉफिट था?
पहला साल मैंने 80 लाख का किया था, दूसरा साल 180 का किया था, तीसरा साल 380 का किया था, फिर चौथा साल कोरोना आ गया। फर्स्ट कोरोना के बाद ये लोग मिले सब लोग। कितना प्रॉफिट था उसका? बहुत पैसा था सर। तो अरे बताओ ना। जो ये लोग की गिनती में वाकड़ा नहीं आते, ये लोग परसेंटेज में बोलते हैं। नहीं, परसेंटेज इसलिए गिनती में नहीं था क्योंकि अनडिक्लेयर्ड प्रॉफिट था या सर सोडा पप का धंधा ही कैश का था ज्यादा। तो जो सोडा पप का बिजनेस इसमें है अभी भी? सोडा पप अभी आज भी मेरे पास एक है, जो ये अभी फोटो वो अलग है, वो आधार उसमें नहीं है। वो अलग है, वो साले को दिया हूं। और ये जो साले, अच्छा साले साहब को दिया हुआ है। और आप लोगों का उस टाइम पे क्या रेवेन्यू था जब आपने ये मर्ज किया? 1 CR के आसपास रहेगा इन टोटल। इट वाज अ डिफरेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। शार्क, आज हम आपको आपकी दादी याद दिला देंगे। हाँ, आपकी अपनी दादी। और क्यों ना दिलाएं? हम सब बिजी लाइफ में अपनी दादी और नानी के हाथों का स्वाद इतनी तेजी से भूल जो रहे हैं। मैं हूँ उषा, एक माँ, एक दादी और एक कुक। मैं अपने बच्चों के लिए लड्डू, चिवड़ा जैसे स्नैक्स बनाती हूँ, और जब वो खत्म हो जाते हैं तो ये लोग वापस उसी जंक फूड पर आ जाते हैं, क्योंकि इनके पास वक्त ही नहीं है। और ना ही आपके हाथों की कुकिंग स्किल्स। समस्या केवल कुकिंग स्किल्स और समय के अभाव की नहीं, समस्या एक्चुअली है कन्वीनियंस के गैप की भी। इसलिए मैंने शुरू किया मामा नरेश, ताकि भारत की दादियों के स्नैक्स अगली पीढ़ी तक पहुंच सकें। मामा नरिश है एक क्लीन लेबल ग्रैंडमा स्नैकिंग ब्रांड। यहाँ सब कुछ बनता है असली दादियों की रेसिपीज और केवल किचन के क्लीन इंग्रेडिएंट्स से, ना कोई प्रिजर्वेटिव, ना कोई केमिकल। और हमारे सबसे खास मामा नरिश के लड्डू बार्स। पैकिंग और शेप इतनी कन्वीनियंट कि किसी भी एनर्जी बार की तरह इन लड्डू बार्स को भी आप अपने पॉकेट में रख के घूम सकते हैं। चाक्स, हम अपने लड्डू बार और दादियों के स्नैक्स के माध्यम से विरासत का एक पुल बना रहे हैं। मैं यश, कुणाल और उषा दादी आज मुंबई से आपके सामने आए हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। मैं रमा मोहन, ओरिजिनली फ्रॉम आंध्र प्रदेश, बट आई एम स्टेइंग एट नागपुर। ये लड्डू में खास सामग्री बादाम, सूखे मेवे और खास कोकोनट है, और इसमें शुगर के बदले में हम खजूर डालते हैं। मेरा नाम अश्लेषा परसुरे है। मैंने पोहा का चिवड़ा मामा नरिश के लिए दिया है। ये चिवड़ा की खासियत ये है कि ये किचन इंग्रेडिएंट से बनाया है। ये सब रोस्टेड इंग्रेडिएंट्स है और उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। ये बहुत टेस्टी है। हाँ, वेरी टेस्टी। मेरे को तो पोहा चिवड़ा बहुत पसंद है। ये सब महाराष्ट्र घर में महाराष्ट्रियन ये आपके लिए बनाया है। पत्तड़ पोहा चिवड़ा। ये बहुत ही बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू। आपको कैसा लगता है अपनी फोटो पैकेजिंग में देख के? बहुत अच्छा लगता है ना? वी आर प्राउड एक्चुअली। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद आपका। Thank you very much. थैंक यू। कुणाल, उषा जी, यश, अपने थोड़े बारे में बताइए प्लीज। ये क्यों शुरू किया, कब शुरू किया? मेरा नाम है उषा श्रोत्रिय, मेरी उम्र है 65 साल। मैं यूपी के संभल से हूँ। 2021 में मेरा पोता शौर्य हुआ था मुंबई में। तब मैं नोएडा से मुंबई आई थी। 2.5-3 महीने के बाद जब मैं वापस नोएडा पहुंची तो कुछ दिनों के बाद इनके लड्डू खत्म हो गए होंगे मेरी बहू के। तब उसने कॉल किया, मम्मी जी मेरे को रेसिपी बता दीजिए। मैंने उसको बता दी, पर वो नहीं बना पाई। तब मैंने सोचा, अरे मेरे अपने बच्चे जो खाते चले आ रहे हैं वही नहीं बना पा रहे हैं, तो आगे आने वाली पीढ़ी को ये कैसे बचेगा। इसलिए फिर मैंने ठाना, मैंने कि नहीं, दादियों की विरासत को बचाना भी आगे भी बढ़ाना है। बहुत बढ़िया। फिर 2023 में हमने मामा नरिश शुरुआत की और 1 जनवरी 2024 को पहला प्रोडक्ट मार्केट में गया। मैम, आप बैठना चाहेंगी? हाँ, तो वो एक चेयर है पीछे, आप प्लीज कुणाल, पीयूष हेल्प कर देंगे। वैसे ये मैंने लड्डू बार खत्म कर दिया है। Yeah, it was और ये भी बहुत अच्छा है, चिवड़ा भी। इनक्रेडिबल, बहुत का भी अच्छा है। फील आ रहा है। और क्या होता है, ये जो बार होते हैं ना, बहुत बारी दांतों में चिपकते हैं। इसमें भी डेट्स हैं, बिल्कुल नहीं चिपक रहे। और ये हेल्दी है। So I will call it is better for you, क्योंकि मार्केट में जो भी इसका अल्टरनेट मिलता है that is all with palm oil. बेटर फॉर यू सब्जेक्टिव हो जाता है थोड़ा। तो इसमें 3 क्लियर डिफरेंशिएशंस है। पहला, हमारी हर रेसिपी एक्चुअली एक दादी की रेसिपी से इंस्पायर्ड होती है।
दूसरा पॉइंट आ जाता है, इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट किचन के बियॉन्ड नहीं है, तो किचन क्लीन इंग्रेडिएंट से बना है। थर्ड यूएसपी इज कन्वीनियंस। आज हमारी लाइफ में हर चीज कन्वीनियंस की वजह से ही हमारी हैबिट स्टैक में घुसती है। कितने SKU है हमारे अभी? तो 6 रेसिपीज और 14 SKUs है हमारे पास अभी। जैसे वेंडिंग के लिए हमने लड्डू बार मिनी का 36 रुपीज का प्राइस पॉइंट पे 2 मिनीज लॉन्च किए हैं, एकदम छोटा 9 ग्राम का 45 कैलोरीज। ये 3 लड्डू बार है और 4 मंचीज है। 4 लड्डू बार हैं और 2 मंचीज। मैन्युफैक्चरिंग आप खुद कर रहे हैं? दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में है। तो हमारा क्योंकि रेसिपी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, तो जैसे हमारे चिवड़ा में सीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम क्या करते हैं, हमारे चिवड़ा की मिर्ची आप अलग जगह से इंग्रेडिएंट भिजवा देते हैं? लाते हैं, मिक्सिंग एक सप्लायर पे होती है, ही ओनली गेट ब्लेंडेड सॉल्यूशन, उसके बाद बस फाइनल असेंबली होती है। और QC के लोग अपने खुद के हैं? सो क्वालिटी चेक अभी तो पर्सनली मैं खुद ही कंट्रोल करता हूँ, मतलब मैं कंपनी के अंदर ब्रांड और NPD एंड क्वालिटी इज माय कोर रिस्पांसिबिलिटी टुडे। और इनकी क्या है? मैं सेल्स, ऑपरेशंस, HR और IT देखता हूँ।